Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. This is Dr. Farhat Umar, and you're watching me live on India's largest online educational platform, An Academy. Friends, today we are going to talk about a really very important topic. It concerns all of us because we are all, undergoing one exam or the other. You must be an aspirant of UPSC or PSCs or SSC CGL, or for that matter, Bank PO or PMT or JEE, whichever student you are. Please stay tuned to this important talk. I'll here be talking about stress, exam related stress in particular, and then I'll also discuss various ways to counter it, to overcome stress. Dear friends, stress in India has been creating havoc. There was a report that was published very recently, in fact on 14th of September. ZipChat conducted a survey to know various in various states, around 150 cities, and they came across various stress patterns across the world. And the least stressed city in the world was found out to be Stuttgart, Germany. And do you know where does Delhi stand? It stands at 142nd spot. And if you talk about Bangalore stands at 131st spot. And then when you talk about Mumbai, it stands at 138th spot. So which clearly indicates that we are in deep trouble, because stress is creating havoc all across the world, and India is in real big trouble. If we talk about some other reports, it suggests 46% of Indian workforce is actually suffering from stress. And I came across some reports of National Crime Bureau, and they suggest 40,000 students from 2011 to 2015 actually committed suicide. And we have the highest rate of young youth committing suicides in the world. So this is a really big trouble. Stress overall has been quite doing a lot of trouble to us. And my dear friends, if you talk about stress in general, what is it? It is just a body response to the different stimuli, to different actions that happen. And if you there are two different types of stress. One is very useful to us, and we often face it during exams or during facing an interview, and at the same time, while meeting someone. कभी-कभी क्या हो जाता है, किसी सीनियर से मिलके, या अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आशिक हों, किसी माशूका से मिलके, you feel that heart racing fast, or breaths getting intense, and at the same time sweating and all. With that again is a sign of stress. इसके पीछे असल में in our body there are a couple of hormones which are involved in it. The first one is, we call that adrenaline. Then we have noradrenaline, then we have cortisol, and many other hormones which actually rise up and cause our body to react in a certain way. Some amount of stress, basically body produces stress to counter any immediate immediate action. But होता क्या है, कभी-कभी जब persistently जब stress हो जाए एक इंसान को, it causes a lot of trouble. It can sometimes lead to heart diseases, and at times reduced performance. एंड आप क्योंकि एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम की तैयारी करते करते इंसान इतना स्ट्रेस में पड़ जाता है, उसको फिर समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रह पाता, फोकस उसका बिल्कुल हट जाता है, और एट द सेम टाइम वो जब एग्जाम में अपीयर होता है वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता. तो दोस्तों, टुडे वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल. आई विल फर्स्ट बी टॉकिंग अबाउट what stress does to our body. मैं आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा, और उन साइंस एंड सिम्टम्स को आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, सुनिएगा, और अपने आप को एनालाइज कीजिएगा. आप में ये साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं है. कॉग्निटिव लेवल पे बात करें, दिमाग के लेवल पे बात करें, तो अगर आपको लग रहा है आपकी मेमोरी कम हो रही है, आप जज नहीं कर पा रहे, एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि आप
चीजों को नेगेटिवली देख रहे हैं और आपको लग रहा है आप हमेशा परेशान रह रहे हैं, मायूस रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं। इमोशनल लेवल पे अगर देखा जाए, अगर आपका मूड जल्दी स्विंग हो जाता है, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यू शुड गो इनटू लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बड़े डिरेंज से हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप स्ट्रेस के शिकार हो। फिजिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो बॉडी है उसका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। वी बिकम लो इन इम्यूनिटी इफ यू आर इन स्ट्रेस। दैट मीन्स वी आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ दीज डिजीजेस लाइक फ्लू एंड समटाइम्स डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एंड एट टाइम्स वी हैव चेस्ट पेन। और कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, विच अगेन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। तो एट द सेम टाइम, इफ यू आर ईटिंग मोर or eating less, if you are sleeping more or sleeping less, if you are given some job and you don't want to do it, you feel lethargic, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के दौरान अगर ये सारे सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम इफ यू सी समवन बाइटिंग हिज नेल्स एंड being confused at a stretch, तो कहीं ना कहीं क्या है, he may be affected with stress. So दोस्तों, अब क्योंकि हमें पता है डिफरेंट सिम्टम्स स्ट्रेस के क्या है, वी नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, आई विल क्विकली बी टेलिंग यू 9 इंपॉर्टेंट वेज बाय विच वी कैन ओवरकम स्ट्रेस। नो नींबू पानी, किसी ने बोला नहीं नींबू पानी से स्ट्रेस दूर नहीं भागता। हाँ, अगर हम रेगुलरली नींबू पानी पीते रहें तो हाइड्रेटेड रहेंगे, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। तो दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हैं इन द मीन टाइम की डिफरेंट तरीके क्या हैं जिससे आप स्ट्रेस को ओवरकम करते रहते हैं। आप कमेंट्स जरूर लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मैंने काफी रिसर्च किया, आई फील इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम पर्पस अपना रखें और उसको विजुअलाइज करते रहें, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को यूपीएससी करना है, ही हैज टू मेक इट श्योर दैट ही इज डूइंग यूपीएससी नॉट बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड वांट्स हिम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, or not because somebody else has told him कि IAS officer is all about power. So he has to have a bigger purpose, a bigger vision in his mind that will drive him. तो drive must come from within. अगर ऐसा होगा तो जरूरी है कि छोटी मोटी चीजें उसको affect नहीं करेंगी। So prepare with a sound mind, sound purpose in your mind. That is exceptionally important. And at the same time, planning things minutely. My dear friends, we have a lot of strategies and a lot of these plans available now on YouTube. Roman Seni, Tina Darby, Athar Amir, Shah Faisal, many others, SSC CGL toppers and Bank PO toppers and CAT toppers. All of them, they do amazing, live sessions, and they do amazing videos with Unacademy and various other platforms. आपके पास पूरा स्ट्रैटेजीज का भंडार है दोस्तों। और ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये ऐसे ही नहीं है। आपको अगर आप स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं, यू विल नीड टू मेक अ क्लियर स्ट्रैटेजी। आपको पता होना चाहिए आप नोट्स कहां से ला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप गाइडेंस आपको कहां से मिल रही है। आप किसी जो आपके जो सीनियर्स हैं जो आईएएस कर चुके हैं या एसएससी सीजीएल टॉप कर चुके हैं या कोई और एग्जाम्स कर चुके हैं, आप उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कीप दैट गाइडेंस विथ यू एवरी टाइम। और इस सब चीज को यू नीड टू नोट इट डाउन, आपको ये लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये दिमाग में रख लें, सारी चीजें दिमाग में नहीं रह पाती। सो मेक इट श्योर दैट यू कीप ऑल दीज थिंग्स रिटन डाउन समवेयर, और वो एक चार्ट एक लगा लें, एक बेहतर सा खूबसूरत सा प्लान बना के लगा लें। उसको आप हर दिन देखें, विजुअलाइज करें, और उसको क्या होता है, जो हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वही फिर एक्चुअलाइज होता है, वही फिर रियलिटी बन जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब इसका शिकार होते हैं जब हम किसी कंपटीशन में होते हैं, वी वरी मोर व्हाट अदर्स आर डूइंग देन व्हाट वी कैन एक्चुअली डू। हमारा हमेशा फोकस रहता है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है और उसने तो सब खत्म कर लिया, मैं नहीं कर पाया। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट अदर्स, यू मस्ट फोकस on your efforts and results will come. I mean, they are bound to come if you work hard. And then important thing, जब आप किसी एग्जाम में हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि यूपीएससी इज अ प्रोसेस, एक
1.5 साल 2 साल लगता है पूरी तैयारी में, बहुत सारे और एग्जाम्स इट्स अ फुल फ्लेज प्रोसेस, ये एक्सटेंड होता है 1 साल 1.5 साल के लिए। सो हमें इस पूरे टाइम में क्या करना चाहिए, वी शुड कीप रिवाइजिंग things at regular intervals. Revisions are exceptionally important, my dear friends. So अगर आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रिवीजन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आपके यहाँ रोमन सैनी के बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे रिवीजन टेक्निक्स के बारे में। मैं जो रिवीजन टेक्निक फॉलो करता हूँ वो ये है, 0 डे पे, फिर 3rd डे पे रिवाइज करूंगा, फिर 7th डे पे रिवाइज करूंगा, फिर 15th डे पे रिवाइज करूंगा, फिर 30th डे पे रिवाइज करूंगा, ताकि वो चीज रिटेन हो जाए। और it's kind of very obvious कि we tend to forget things. It's perfectly okay to forget things. Most of the information अगर हमें retain करनी है, we'll need to keep revising it. And then important thing, आपको स्टडीज में जो स्ट्रेचेस आप में पढ़ रहे हैं, स्टडीज के स्ट्रेचेस में, मेक इट श्योर दैट यू टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, होता क्या है कि एक स्ट्रेच में अगर आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एज इफेक्टिव एज रीडिंग फॉर 45 मिनट्स, टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes, then coming back and then going off and coming on. So इस चीज से क्या हो जाता है, आप ये जो ब्रेक्स हैं इनको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने आप को साइक अप करने के लिए। यू कैन प्रोबेबली लिसन टू योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, और आप डांस कर सकते हैं। इफ यू लव टू डांस, you can have you can do what you love to do. For example, your hobbies. If you are a good painter, please paint. If you are a good writer, please write. If you are a good guitarist, please play guitar. Roman Seni would play guitar, and he has played it very effectively, and he's doing it. And then you can sometimes even socialize. Go to Facebook and write read 2 chapters of Lakshmikant, hashtag पढ़ाई का बुखार, hashtag IAS का is not far, hashtag I am a superstar, whatever you want to, but make it sure that you do things that you love to do in those power gaps that you give in between. And at the same time, you can also exercise. Exercise is important. Somebody said riding. Yes, it's a wonderful exercise. Riding, at the same time jogging, swimming, and doing many other activities that that involve the physical self, rhythmic activities. It takes your mind off all the stressful elements, and at the same time it reduces your cortisol level, and at the same time it it increases the endorphin level. जब आप खुश होते हैं तो बहुत सारा endorphins release होते हैं, and endorphins make you feel good. So exercises are important. Please make it a regular component of your preparation, and please take care of your health. And breathing and meditation at the same time. Whatever faith you belong to, spend some time meditating, spend some time deep breathing. क्योंकि स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। व्हाट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ अ शैलो ब्रीदिंग? डीप ब्रीदिंग। हम डीप ब्रीथ करें, 5-10 मिनट का सेशन ऐसे रखें, ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक ज्यादा पहुंचेगा, एंड इट विल गिव अस एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। आप ये फील कर सकते हैं इफ यू वांट टू ट्राई। एंड देन एट द सेम टाइम इंप्रूव योर ईटिंग हैबिट्स। हमारे यहाँ एग्जाम्स में क्या हो जाता है, बिकॉज आई बीन अ स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड दिस, हम अपनी पूरी जिंदगी फिर मैगी पे गुजारेंगे, या जो हमारे साथ वाले भाई साहब बर्गर बनाते हैं जो बहुत अनहाइजीनिक होता है उस पर गुजारेंगे, या थोड़े बहुत पिज्जा वगैरह लेके उस पर गुजारेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने ईटिंग हैबिट्स बहुत बेहतर करने की जरूरत है जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। डोंट टेक इट लाइटली। व्हाट वी आर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट वी ईट। सो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू ईट प्रॉपरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। हमारे यहाँ हम ग्रीन वेजिटेबल्स से लेके, फ्रूट से लेके, एट द सेम टाइम मेक इट श्योर यू हैव लोड्स ऑफ वाटर। किसी ने नींबू पानी बोला था, बिल्कुल नींबू पानी ले सकते हैं, रेगुलरली ले। और नट्स, आलमंड्स हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत मिलते हैं, वहां से मंगा लें। So you can take all these things, omega-3, omega-6. You need all these essential components to stay fit, to stay healthy, to help your brain act better. और दोस्तों, उसके साथ आपको, you can go out and observe nature. You can stay quiet for some time and spend some time with your own self. You can spend some time interacting with others. What happens, socializing has a deep impact on how you
how your whole physiology works. So आपको क्या करने की जरूरत है, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने घर वालों पे स्काइप पे बात करें, क्योंकि उनका चेहरा देख के अपने मम्मी पापा का आपको बहुत अच्छा फील होगा. Do all the things that make you feel happy, and that will actually help you in the long run. And then a very important thing that I try, and it has always been it has always kept me psyched up. If I do something, even if it's a small thing, for example, रमेश सिंह के 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इस पे सेलिब्रेट करना है, या कोई और किताब कंप्लीट हो गई, उस पे सेलिब्रेट करें. छोटी छोटी सेलिब्रेशंस आप बिल्कुल कर सकते हैं, उससे आप बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे, आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय करेंगे. एग्जाम में प्रिपेयर करना इट्स अ बोरिंग थिंग, सो यू कैन एक्चुअली मेक इट इंटरेस्टिंग. उससे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और आप अच्छा भी कर पाएंगे. और 9वीं चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट आप जरूर उनमें अपियर हों. जो डिफरेंट मॉक टेस्ट आते हैं, डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मॉक टेस्ट कराते हैं, मेक इट श्योर दैट यू अटेंड दोज मॉक टेस्ट. होगा क्या, जब आप मॉक टेस्ट में जाएंगे तो आपको एक प्रेशर सिचुएशन मिलती है जो कि सिमुलेट करती है ओरिजिनल सिचुएशन को, एग्जाम वाली को. तो आपका क्या होता है, आपका ब्रेन जो है वो अपने आप को अकॉर्डिंगली ट्रेन करता है ऐसी सिचुएशंस के लिए. जब आप 2, 4, 5 मॉक टेस्ट देंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एंड अप डूइंग बेटर इन योर एग्जाम्स. सो दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है, इसके बारे में आप बहुत सारे, इनफैक्ट मुझे लगता है सभी जितने भी आपने इंटरव्यूज देखेंगे, जो टॉपर्स होते हैं आईएएस के, या जो टॉपर्स होते हैं एसएससी सीजीएल के, बाकी एग्जाम्स के, दे ऑलवेज से कि दे गो फॉर मॉक टेस्ट. दिस हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन हाउ अ पर्सन कैन परफॉर्म लेटर ऑन इन हिज एग्जाम्स. सो दोस्तों, मैं जल्दी रिवाइज करूंगा जो भी मैंने आपको बोला, ताकि आपको याद रहे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली, आपको पढ़ना, आपको अगर कोई चीज करनी है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है विद अ साउंड पर्पस इन योर माइंड. ये उल्टे सीधे पर्पस नहीं चलेंगे. एट द सेम टाइम हर एक चीज को प्लान करना है, बहुत अच्छे से प्लान करना है, मेटिकुलसली प्लान करना है. तीसरी चीज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग. एट द सेम टाइम यू हैव टू रिवाइज एट रेगुलर इंटरवल्स. फिफ्थ चीज, आपको पावर ब्रेक्स लेनी है, उसमें जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है वो आप करें, और अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं. वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको खुश करता है वो करें. और छठी चीज, मेक इट श्योर दैट यू डू रेगुलर एक्सरसाइज. सो थोड़ा सा दौड़ना, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलना, थोड़ा सा आप स्विमिंग कर सकते हैं, किसी ने बोला राइडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी और ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, बिकॉज अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी. फिर ईटिंग हैबिट्स अपने बिल्कुल सही करें, और आपकी मम्मी भी यही बताती हैं, डॉक्टर्स भी यही बताते हैं, तो प्लीज डू इट. और अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करें, छोटे छोटे गोल्स पे आप सेलिब्रेट करें, उससे आप साइक्ड अप रहेंगे. 9वीं इंपॉर्टेंट चीज, आप मॉक टेस्ट लेते रहें, उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, यू वर अमेजिंग ऑडियंस. मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, कोई बोल रहे हैं उनको गर्लफ्रेंड चाहिए. जी, आप बिल्कुल गलत जगह है अभी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एनीवे, एंड I'll keep coming up with more innovative and beautiful videos. आप एक काम करें, अभी इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग जान पाएं स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है. दोस्तों, टेक केयर.